Jai Hind student. In previous video we were discussing about the quantum number. In that video we were already discussing about principal quantum number as well as azimuthal quantum number. Now we have discussed about magnetic quantum number. By the name of this heading everything is already clear. Magnetic quantum number. What is the meaning of magnetic quantum number? You can directly say by the seeing this property in this heading. What is the meaning of magnetic? इसका मतलब सीधी सी बात है. The magnetic properties of the element or atom is also explained from here. It means in this case we were also discussing about the splitting of a spectral line in magnetic field like Siemens effect. It can also explain here. In this heading we will discuss about orientation of the electron by which magnetic property will generate. This quantum number is specified by a small m. It mainly used to denote the number of subcell or orbital. Subcells नहीं बल्कि सबसेल अब न कहो, सबसेल इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल्स. यहां हम बात करेंगे ऑर्बिटल, सिंगुलर ऑर्बिटल. इट मींस इट इज डिनोटेड बाय स्मॉलर एम. स्मॉलर एम की वैल्यू क्या होगी भाई? अगर मैं स्मॉलर एम की वैल्यू अगर निकालना चाहूं तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं. कैसे बता? तो याद करो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, m इज इक्वल टू 12 प्लस 1. यानी यहां से एक फॉर्मूला आता है m इज इक्वल टू 12 प्लस 1. क्योंकि इस फॉर्मूले का क्या यूज है भाई? हियर L इज azimuthal quantum number. It denote the number of orbitals. For example, अगर मैं s ऑर्बिटल ले लूं तो s ऑर्बिटल के लिए क्या होगा? L की वैल्यू 0, तो m की वैल्यू क्या आएगा? 1. कहोगे कैसे बता? 2 into 0 plus 1. इसका मतलब क्या लिखेंगे s के लिए? तो मैं लिख सकता हूं 0 वैल्यू. अगर मैं p ऑर्बिटल के बारे में बात करूं तो p के केस में क्या हो सकते हैं भाई? L की वैल्यू होता है 1 का मतलब m की वैल्यू क्या होगा? -1 2 0 plus 1. इसका मतलब -1 0 and plus 1, ये टोटल 3 वैल्यू हो गए ना. इसका मतलब क्या होगा? L की वैल्यू अगर 1 आएगा या 1 रखिए आप, 2 1 जा 2 plus 1, दैट मींस m की वैल्यू टोटल कितने हो जाएंगे? 3. आप चेक कर लीजिए, है 3. कैसे बता? तो अगर आप फॉर्मूला लगाना चाहें तो कह सकते हैं m इक्वल टू 2 into L. L की वैल्यू क्या आएगी भाई? 1 आएगा प्लस 1, दोनों ऐड कर दिए 3 आएंगे, 3 वैल्यू है. If the value of for D the value of L is equal to 2, in that case the value of M will be -2 -1 0 plus 1 plus 2. यानी ये वैल्यू आना चाहिए -2 -1 0 plus 1 plus 2. इसका मतलब डायरेक्टली यहां से कह सकते हो कि क्या डिनोट कर रहा है? डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल. कैसे बता? क्योंकि आपको पता है D having 5 segment, है -2 -1 0 plus 1 plus 2. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन. अगर हाफ फील्ड है तो इस तरह का होगा, फुल फील्ड अगर होता तो इस तरह से डिनोट करते, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में. Then after we have discussed about F के टर्म में भी क्या होगा? L की वैल्यू 3 आएगी. अगर L की वैल्यू 3 आएगा तो टोटल वैल्यू M की कितनी हो जाएगी? 3 2 जा 6 plus 1 means 7. By this method we can calculate the value of M. अब देखो, अब ये तो मैंने लिख दिया, ये हमने लिख दिया. What is the role of magnetic quantum number? Magnetic quantum number first used to identify the magnetic property. Second, it is used to determine the shape of the orbitals. It means we should also discuss about the shape of the orbitals. लेकिन अभी नहीं, पहले एक एग्जांपल सॉल्व कर ले, उसके बाद एग्जांपल में क्या आएगा भाई? फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने सल्फर ले लिया, S having 16 atomic number. What will be its electronic configuration?
1s2 2s2 2 पे 6 3s2 and 3 पे 4. See here, sulfur having 16 electron during writing electronic configuration, what will be 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 4. 2 plus 8 10 plus 2 12 plus 4 16 electrons is there. Generally in case of element or atom, we should always find the all four quantum number for last cell electron. Here last cell is 3p4. ऑर्बिटल से पहले का डिजिट क्या बताएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू क्या आएगा? 3. और p ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? इन स्मॉलर l की वैल्यू कितना होना चाहिए? यानी p के लिए लिख सकते हैं 1. और जैसे l की वैल्यू लिखते हो आप इमीडिएट उस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बनाइए, यानी p हैविंग 3 सेगमेंट 1 2 3 3 हो गए. 4 इलेक्ट्रॉन को पुट कीजिए. ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक रूल पढ़ेंगे, ठीक है ना? और उसमें पढ़ेंगे हुन्स लॉ में क्या भाई? गैस्ट्रोल. पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ध्यान दीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे ना तो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन का नहीं करेंगे. कब तक? जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न रख दें. इट मींस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस इन ईच ऑर्बिटल अनलेस और अनटिल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिल्ड देयर. यानी अगर p में 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले यहां एक रखेंगे, दूसरे वाले में फिर एक रखेंगे, तीसरे वाले में फिर एक रखेंगे. जब एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना तब यहां से पेयरिंग करेंगे. तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? यहां हो जाएगा. एंड दिस इज अ करेक्ट मेथड. अब आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि 3 सेगमेंट है, यहां 2 कर दिया, यहां 2 कर दिया, यहां एक भी नहीं. ऐसा नहीं होता. दिस इज नॉट द मेथड ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल. यानी ये तरीका नहीं इलेक्ट्रॉन भरने का. अब दो जी, इनके रोल नंबर 3 अगर हो गए, 3 के लिए रोल नंबर होते हैं -1 0 +1. -1 के लिए अगर मैंने मान लिया क्या एक px है, तो ये क्या होगा? py होगा, तो pz होगा. आप बताइए चौथा इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? देखिए 1 2 3 तक तो भर दिए, चौथा यहां आ रहा है. अगर चौथा यहां आ रहा है तो m की वैल्यू क्या होगी भाई? तो डायरेक्टली m की वैल्यू क्या होगी? अगर ये -1 है तो इनकी वैल्यू क्या लिखेंगे? -1. टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने हो जाएंगे? 1 2 3 हो गए. नहीं, 1 2 3 से मुझे मतलब नहीं, मुझे लास्ट इलेक्ट्रॉन के प्लेस से मतलब है. और लास्ट इलेक्ट्रॉन का प्लेस कहां है? -1 में. इसलिए क्या लिखेंगे? m की वैल्यू -1. ठीक है ना? तो बाय दिस मेथड वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम. इसका मतलब अगर मैं सल्फर की बात करूं तो सल्फर में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं. हर 16 इलेक्ट्रॉन का अलग अलग चारों क्वांटम नंबर हो गए. इट मींस एक रूल आगे मिलने वाला है, पॉन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. सो हम बताएंगे कि किसी एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का चारों सेट क्वांटम नंबर का सेम नहीं हो सकता. बात करेंगे अभी जस्ट बात. Thereafter we have discussed about the shape of the orbitals because magnetic quantum number also explain the shape of the orbitals. Now we have discussed about shape of the orbitals. हमें लग रहा है इस वैल्यू में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए. अगर होगा तो फिर आप पूछेंगे. Thereafter we will discuss about the shape of the atomic orbitals because magnetic quantum number also determine the shape of the orbitals. Shape of the orbitals. Orbital, not orbitals. Shape of the orbital. Now we should discuss about shape of orbital. आप बताओ जी, अगर मैं एस ऑर्बिटल के बारे में बात करूं तो एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? ऑलवेज स्फेरिकल. ऑलवेज स्फेरिकल. Z axis, X axis, Y axis, always spherical. This is spherical structure. I think आपको भी डाउट नहीं होना चाहिए. Thereafter, we have to draw the structure of p orbital.
पी ऑर्बिटल। आपको पता होना चाहिए पी ऑर्बिटल के 3 सेगमेंट होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर मैं तीनों सेगमेंट के बारे में बात करूं तो क्या आएगा भाई, पी एक्स ऑर्बिटल, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा इनके बारे में बात करेंगे। देन पी वाई, इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा इनके बारे में बात करेंगे। मुझे आप बताओ एक लाइन में अगर मैं बात करना स्टार्ट करूं तो पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डंबल लाइक। डंबल लाइक, अगर यहां एक्स लिखा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मोमेंट कहां आना चाहिए, एक्स प्लेन में, यानी क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये वैल्यू होना चाहिए। और ये जिस पॉइंट को आप देख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं नोडल पॉइंट। बात करेंगे व्हाट इज नोडल पॉइंट, टाइम लगेगा। आप देखो जी, इसके बाद अगर मैं बात करूं वाई एक्सिस में, तो ये तो एक्स है ही, वाई है ही, यानी इनका वैल्यू कैसा आना चाहिए, तो कुछ ऐसा आना चाहिए। अगर मैं जेड एक्सिस के बारे में बात करूं तो जेड एक्सिस भी कुछ ऐसा ही होगा, यानी पी जेड एक्स वाई, और एक आ जाएंगे जेड एक्सिस एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। इनका अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो कैसा मिलेगा भाई, तो जेड एक्सिस पे मिलना चाहिए, ठीक है ना। Thereafter we have discussed about the shape of d orbitals. See, shape of d orbital, orbital, d having 5 segment, dxy, dxz, dyz, dx square minus y square and dz square. See, first we have discussed about shape of dxy. अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक्स एक्सिस होना चाहिए, वाई होना चाहिए। अब कह रहा है क्या, एक्स वाई, एक्स वाई ऑलरेडी नोट द प्लेन, यानी प्लेन ना तो एक्सिस पे होगा ना वाई पे होगा, दोनों के क्या होंगे, बीच में होना चाहिए, यानी यहां से स्टार्ट होंगे, कुछ ऐसा होना चाहिए, और दूसरा इसका सेगमेंट भी बनेगा, क्योंकि डबल डंबल लाइक शेप होता है इसका, डबल डंबल लाइक, देखिए डबल डंबल लाइक है। दूसरा अगर मैं देखता हूं क्या, dx y के बाद दूसरा आता है dx z, इनका ग्राफ कैसा होना चाहिए भाई, तो एक पे z एक्सिस ले लेंगे, एक पे y एक्सिस ले लेंगे, ग्राफ तो ऐसा ही बन जाएगा, बस एक्सिस को वेरी कर देंगे, यानी यहां से ऐसा ग्राफ चलेगा, कुछ ऐसा ग्राफ होना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्या, थर्ड वाले में आ जाएगा dx y हो गए, dx z हो गए, तो dy z देख लेते हैं, dy z, इनका अगर मैं शेप देखूं तो कैसा मिलेगा भाई, ये हो गए जेड एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, इनका भी ग्राफ कुछ ऐसा ही बनेगा। कोई डाउट? ध्यान दीजिए, यहां एक्स और जेड था, तो यहां पे जेड कर दीजिए, यहां एक्स कर दीजिए, और यहां पे हो गया क्या, वाई और जेड। Thereafter we have discussed about फोर्थ वाला कैसा होना चाहिए भाई, तो कह सकते हैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन भी है, इसका क्या मतलब हुआ भाई, दोनों का डिफरेंस, यानी अगर ये x हो गया तो ये y हो गया, इनका ग्राफ ऐसे ही रहेगा और दूसरे वाले का ग्राफ कुछ ऐसा ही रहेगा। इस तरह के ग्राफ बनते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लास्ट आता है क्या, dz स्क्वायर, द शेप ऑफ dz स्क्वायर, हाउ मच, कैसा आना चाहिए भाई, तो ये अद्भुत है, ये अद्भुत, इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर ही है, और ये स्ट्रक्चर अपने आप में फेमस है।
ये Z हो गए, ये X हो गए। यानी इनका स्ट्रक्चर गजब आता भाई। आप देख लो किस तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जबकि बीच में यहां नोडल पॉइंट भी है। तो इस तरह के शेप बनते हैं किसका, डी ऑर्बिटल का, यानी s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल एंड d ऑर्बिटल, इनके शेप इजीली हम लोग बना सकते हैं। Then after we have discussed about a spin quantum number, last topic of this quantum number, a spin quantum number. What is spin quantum number? We should discuss just. See, a spin quantum number, fourth. देखिए आज सब कुछ क्लियर है ऑलरेडी नाम से ही। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है जस्ट अपोजिट होती है। और अगर डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसका मतलब अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। क्लियर? क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेगा, वेट बेटा, क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब ध्यान दो, इसमें क्या दिखेंगे, जैसे मान लीजिए अगर मैंने एक ऑर्बिटल ले लिया, तो अगर एक डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है, तो नेक्स्ट का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इट मींस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के भी अपने अलग अलग यूजेस हैं। अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एक मैग्नीफाइड करेगा तो दूसरा एंटी क्या करेगा, ठीक है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एक अगर मैग्नीफाइड कर रहा है तो दूसरा डी मैग्नीफाई करेगा। अगर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट कर रहा है तो दूसरा उससे क्या करेगा, कैंसिल करेगा। यही रीजन है कि यहां पे स्पिनिंग में स्पिन क्वांटम नंबर को स्पेसिफाइड किया गया है स्मॉल एस से, स्मॉल एस और एमएस, ये दोनों टर्म सेम है। यहां दिखेगा क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, फॉर क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तो एस की वैल्यू क्या होगी भाई, +½ और ध्यान दीजिएगा कैसे पहचानेंगे कि कब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जब भी अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्लॉकवाइज मानते हैं, ये फिक्स नहीं है। आप एज्यूम करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन के इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या लेंगे, +½ जब भी किसी ऑर्बिटल में अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए +½ लेंगे। और दूसरा अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहां एस की वैल्यू क्या होगी, -½ ये क्या है भाई, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी बात, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज सो डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। सो इसके लिए टेक्निक क्या है भाई, तो अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए एस की वैल्यू क्या होगी, हमेशा +½ अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट वाले के लिए एस की वैल्यू क्या होगा, +½ और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, एस की वैल्यू -½ ये फाइनल है, ये वेरी कर सकता है, लेकिन हम लोग के लिए एक नॉर्मल डाटा दी गई है कि ये फॉलो होना चाहिए। यानी अगर एंटी क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, +½ अगर पेयर्ड है तो क्या होगा, फर्स्ट के लिए +½ और सेकंड के लिए -½ फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट आ गया जैसे एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। आप देख लो लास्ट इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, 3p1। बेटा अगर 3p1 है तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और n की वैल्यू यहां क्या लेंगे, 3। अब मुझे बताओ ऑर्बिटल कौन सा यूज हुआ, p, l की वैल्यू क्या होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर, p के लिए 1, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। अब बताओ जैसे l लिखा वैसे p ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर बनाइए, 3 सेगमेंट, px py pz, क्या आएगा जी, -1 0 +1। एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट वाले में आएगा। बताओ जी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट वाले के लिए, -1।
अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो एक यहां दूसरा यहां होता दूसरा यहां होता ना, तो वहां m की वैल्यू क्या होती? 0। अब बताओ s की वैल्यू क्या होगी? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फॉर अनपेयर्ड क्या होगा भाई? हमेशा +12। बाय दिस मेथड यू शुड कैलकुलेट all 4 quantum number of last electron in any atom. Is it clear or not? If you have any doubt, then you should ask personally.